This question says that a bullet of mass 20 gram has an initial speed of 1 meter per second. Just before it starts penetrating a mud wall of thickness 20 centimeter, the wall offers a mean resistance of 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton. The speed of bullet after emerging from the other side of the wall is close to V. So we need to find the final velocity of the bullet when it will emerge from the thickness of wall of 20 centimeter, which will oppose a force of 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton on a 20 gram body. So it is a basic equation of motion. So the mass of bullet is m given 20 gram and the initial speed say u is equal to 1 meter per second, and here we need to find out the final velocity v, and the distance is also given, say it is s, that is 20 centimeter, which will be equal to 20 into 10 to the power minus 2 meter. Now since it opposes since the wall will oppose with a force of 2.5 into 10 to the power minus 2 Newton, the acceleration will be 2.5 into 10 to the power minus 2 upon the mass of the bullet, that is 20 gram, which will be equal to in kg 10 to the power minus 3 kg meter per second square. So here the acceleration is given, but this acceleration will use to oppose the bullet, so it will have a negative sign here. Now we will use the formulas, that is v square, that is v square equal to u square plus 2as. This is the formula where v is the final velocity, u is the initial speed, s is the distance, and a is the acceleration. So v square equal to 1, since the acceleration is in negative, so 1 minus 2 into acceleration, the value of acceleration 2.5 into 10 to the power minus 2 upon 20 into 10 to the power minus 3. This is a, and the distance s is 20 centimeter, which is 20 into 10 to the power minus 2. So on calculating this, which will be equal to v square equal to 1 upon root 2, 1 upon 2, 1 upon half, that will be 1 upon 2 v square. So therefore v is equal to, taking root under both sides, 1 upon root 2, 1 upon root 2 will be equal to approximately 0.7 meter per second. So the final velocity of the bullet after crossing the mud wall of 20 centimeter, it will having a velocity of 0.7 meter per second. Let's see which option it matches. So the option B, 0.7 meter per second. Thank you. Hello everyone, a cloth cover a table. Some dishes are kept on it. The cloth can be pulled out without dislocating the dishes from the table. For every action, there is an equal and opposite reaction. So, if you see the statement 1, this is because of inertia, right? The dishes have the inertia of rest, right? Have inertia of rest. So, when we pull the cloth from the table, the dishes are kept as it is because of the inertia. And if you see the statement 2, it is said that in the statement 2, for every action there is a equal and opposite reaction. This is true, but this is not a correct explanation for the statement 1. So B will be the correct answer. Thank you. इस क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ दे रखा है और सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है ए क्लॉथ कवर्स अ टेबल, ठीक है, एक क्लॉथ से एक टेबल कवर है, उसमें बोला है सम डिशेज आर केप्ट ऑन इट, कुछ डिशेज रखी गई है उस पर। द क्लॉथ कैन बी पुल्ड आउट विदाउट डिसलॉजिंग द डिशेज फ्रॉम द टेबल, मतलब
डिश जो है वहाँ से गिर नहीं रही है, उसे जो है जहाँ पर रखी थी उसी जगह पर रखी है, और टेबल से जो है क्लॉथ हम पुल कर ले रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो बोला है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है, हम जानते हैं क्या हो, न्यूटन्स थर्ड लॉ है, ठीक है। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। सो यहाँ पर देखें तो ये जो है ये है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है। मतलब जो डिशेस थी जहाँ रखी थी वहीं पर रखी गई हैं, और हमने क्या किया, टेबल पर से जो क्लॉथ था, ठीक है, उसको हमने क्या किया, जो कवर था उसको हमने पुल कर लिया, बाहर निकाल लिया, लेकिन हमारी जो डिशेस थी वो वहीं उसी पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पर रखी हुई है, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट लॉ है, इसको फर्स्ट लॉ है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी इसको बोलते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। और न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो इसमें अब यहाँ पर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टू में क्या रिलेशन है यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ बोल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। यहाँ पर बोल रहा है स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड, तो ये गलत है, एक्सप्लेनेशन इसमें कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये दूसरे लॉ का है बात कर रहा है, ये दूसरे लॉ की बात कर रहा है, ठीक है। ये तो सेकंड लॉ का स्टेटमेंट ही हो गया पूरा, ठीक है। और ये जो है ये इसका यूज़ है, ठीक है, एप्लीकेशन है लॉ ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। सेकंड में बोल रहा है स्टेटमेंट वन इज ट्रू, ट्रू तो दोनों है, ठीक है, और स्टेटमेंट टू भी ट्रू है, ठीक है। स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, तो हमारा ये जो बी ऑप्शन है वो सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या है कि दोनों एक दूसरे को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग लॉ की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक फर्स्ट लॉ की बात कर रहा है जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, और एक जो है थर्ड लॉ की बात कर रहा है न्यूटन के, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, उसका पूरा स्टेटमेंट ही लिखा है, लॉ के बारे में ही लिखा गया है यहाँ पर। तो हमारा इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। द पुली अरेंजमेंट ऑफ फिगर ए एंड फिगर बी आर आइडेंटिकल। देखिए ये मेरा फिगर ए है और ये मेरी फिगर बी है। तो ये मास m, ये मास 2m, इसमें ये मास m और दूसरी तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं 2mg का। तो ए पार्ट में इन फिगर ए द मास m इज लिफ्टेड अप बाय अटैचिंग ए मास 2m, हम देख सकते हैं 2m हमने यहाँ लगा दिया, तो होगा क्या, ये पूरा इस तरफ एक्सेलरेट करेगा। और बी में क्या है, हम 2mg के फोर्स से खींच रहे हैं। तो अब हमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो सभी में एक्सेलरेशन निकालकर हमें कंपेयर करना है। तो पार्ट ए की बात करते हैं, चलिए पार्ट ए। पार्ट ए में देखिए इस m में नीचे की तरफ mg फोर्स, इस 2m में नीचे की तरफ 2mg फोर्स, ये हो गया मेरा। तो इसमें मेरा नेट पुलिंग फोर्स कितना है, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स का कहने का मतलब है कि अर्थ कितने फोर्स से इस पूरे सिस्टम को नीचे खींच रहा है, तो वो मेरा हो गया 2mg माइनस mg, तो ये मेरा हो गया mg के इक्वल। तो एक्सेलरेशन मेरा क्या हो गया, एक्सेलरेशन इन केस ऑफ पार्ट ए इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास, यानी mg अपॉन टोटल मास क्या है 2m प्लस m, तो ये मेरा हो गया g/3 के इक्वल। तो एक्सेलरेशन इन केस ऑफ ए इज g/3। अब चलिए केस बी की बात करते हैं, ये मेरा केस बी है। तो केस बी में अगेन हम देखेंगे, तो केस बी में नेट पुलिंग फोर्स मेरा कितना हो जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, एक तो 2mg हम लगा रहे हैं तो ये हो गया मेरा 2mg, और जो ये मेरा mg इसका लग रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस mg, तो अगेन इसमें मेरा नेट पुलिंग फोर्स mg आ गया। तो एक्सेलरेशन इन केस ऑफ पार्ट बी इज इक्वल टू मेरा हो गया नेट फोर्स यानी mg अपॉन टोटल मास, तो ये केवल एक ही मास है m, तो m, तो ये मेरा हो गया g। ये देखिए इस केस में ये एक्सेलरेशन है और इस केस में ये एक्सेलरेशन है दोनों में। तो अब ऑप्शन देखते हैं, एक्सेलरेशन इन केस बी, केस बी में जो एक्सेलरेशन है g इज 3 टाइम्स मोर देन इन केस ए। हाँ, तो इंटू 3 करेंगे तो g आ जाएगा, मतलब जो मेरा पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पार्ट ए। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि दो ब्लॉक हैं जिनके मास हमें दे रखा है 2.9 किलोग्राम और 1.9 किलोग्राम, देख सकते हैं ये 1.9 किलोग्राम और 2.9 किलोग्राम, ठीक है, इस तरह से हैं, और वो रिजिड सपोर्ट एस से कनेक्टेड है, यहाँ पर एस रिजिड सपोर्ट हम देख सकते हैं, ठीक है। जो दोनों कनेक्टेड है वो इन एक्सटेंसिबल वायर से कनेक्टेड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, दोनों की 1 मीटर लेंथ ये भी है, 1 मीटर लेंथ ये भी है,
ठीक है। तो इसमें बोल रहा है द अपर वायर हैज़ नेग्लेजिबल मास, अपर वायर का कुछ भी मास नहीं है, लेकिन लोअर वायर का मास है, यूनिफॉर्म मास है, जो कि है 0.2 किलोग्राम पर मीटर, 1 मीटर में, मतलब कुल मिला के उसका मास जो है 0.2 किलोग्राम का है। ठीक है। इसमें बोल रहा है होल सिस्टम ऑफ ब्लॉक वायर एंड सपोर्ट हैव अपवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब एक एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है ये सिस्टम। ठीक है, अपवर्ड एक्सेलरेशन है इसमें। ठीक है, ये लेट से m1 है हमारा और ये क्या है m2 है। ठीक है, इस तरह इसको हम सपोज कर लेते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें फाइंड करना है, दो चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। फाइंड द टेंशन, टेंशन निकालना है इसमें, मिड पॉइंट ऑफ लोअर वायर, लोअर वायर के मिडिल पॉइंट पर टेंशन निकालना है, और अपर वायर के भी मिडिल पॉइंट पे हमें, अपर वायर के भी मिडिल पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, पहले हम लोअर वायर के लिए निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं फॉर लोअर वायर, फॉर लोअर वायर। ठीक है, लोअर वायर के लिए क्या हो जाएगा हमारा, लेट से कि जो लैम्डा है यूनिफॉर्म लेंथ है। ठीक है, ये मास पर यूनिट लेंथ है इसकी। ठीक है, क्योंकि इसका मास है कुछ ना कुछ, कितना दे रखा है 0.2 मीटर, सॉरी 0.2 किलोग्राम पर मीटर। so ये है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेट से वो टी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, जो इसमें एक्सेलरेशन मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट लेट से ये पी मिड पॉइंट है इसका, इसका क्यू मिड पॉइंट है। ठीक है, m1 है, ये m2 है। तो यहाँ तक की लेंथ हम मान लेते हैं l है, और इसकी भी लेंथ मान लेते हैं क्या है, वो l है। ठीक है, और इसमें जो टेंशन लग रहा है वो क्या है, t है। ठीक है, ये हम मतलब सपोज कर लेते हैं यहाँ पर। तो नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा इस m1 की वजह से एक फोर्स, मतलब इसमें क्या है, m1 की वजह से फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो इसमें फोर्स क्या लगेगा, ये फोर्स क्या आएगा, ये फोर्स आ जाएगा हमारा m1g। ठीक है, और प्लस आएगा, इसका भी कुछ मास है वायर का, तो वायर का जो मास है क्या है, लैम्डा हो जाएगा, और इनटू आ जाएगा l और इंटू जी, मतलब लेंथ में मास है, लैम्डा l इंटू जी, ये मास पूरा इतना फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, जो कि w होगा। ठीक है, ये w की इक्वल है, पूरा वेट जो नीचे की तरफ फील करेगा वो कितना होगा, ये होगा, और ये इक्वल है टेंशन के। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं T इक्वल्स टू, जो हमारा आ जाएगा पहला इक्वेशन जो होगा हमारा इसके लिए, वो हो जाएगा T इक्वल्स टू होगा टेंशन, वो हो जाएगा m1 प्लस लैम्डा l इंटू जी के, लैम्डा l इंटू जी के, या इसको हम लिख सकते हैं m1 प्लस लैम्डा l इंटू ए के, लैम्डा l इंटू ए। ठीक है, ये इक्वल है a, क्योंकि एक्सेलरेशन, क्योंकि सेम रेट से हो रहा है, जितना एक्सेलरेशन ऊपर है 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जो टोटल इक्वेशन होगी हमारी, पूरी इक्वेशन जो बनेगी वो हमारी आ जाएगी, यहाँ से देखें तो ये इसको लिख सकते हैं T इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस लैम्डा l इंटू आ जाएगा a प्लस जी, ये हो जाएगा a प्लस जी। ये टोटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये भी इसको इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, और ये जो है इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, सो इसको हम लिख सकते हैं कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो क्या है, a प्लस जी है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं इसके लिए, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं इसको, T इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1.9, ये मास दे रखा है इसका, प्लस ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा l की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.5, क्योंकि पूरी लेंथ क्या है 1 मीटर, तो 0.5 मीटर, हाफ मीटर बचेगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास g की वैल्यू और प्लस a की वैल्यू, मतलब 0.2 और प्लस 9.8, तो ये हो जाएगा 10 कुल मिला के। तो यहाँ से आएगा 2 इंटू 10, जो कि होगा 20 न्यूटन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ गया है। फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था कि मिड पॉइंट पर टेंशन क्या होगा, तो पी पॉइंट पर जो टेंशन हो रहा है, पी पॉइंट पर वो क्या हो रहा है 20 न्यूटन का। ठीक है, सेकंड मतलब लोअर वायर में। इसीलिए इसी तरह हम अपर वायर में निकालेंगे, अपर वायर में कितना टेंशन हो रहा है, तो उसके लिए लिख लेते हैं बी, हम लिखते हैं अपर वायर। अपर वायर के लिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपर वायर में अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अपर वायर की कंडीशन है उसमें बोल रहा है कि उसका मास नहीं है। ठीक है, जैसे इसका मास था 0.2 किलोग्राम पर मीटर, तो इसका इस तरह नहीं है, ये मासलेस है। ठीक है, स्ट्रिंग मासलेस वायर है, सॉरी। तो इसमें जो नया टेंशन आएगा लेट से टी डैश होगा। ठीक, टी डैश होगा, और ये पॉइंट है क्यू पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर हमारा नेट
मतलब ये टी डैश एक्सेलरेशन होगा इसमें, ठीक है। तो इसके वजह से इसकी भी लेंथ कितनी है, 12 मान के चलेंगे, और एल लेंथ पे हमको कैलकुलेट करना है। एल लेंथ यहाँ भी है और एल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की एल लेंथ है। सो यहाँ पर जो नीचे की ओर इसमें फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जो लगेगा इस M2 की वजह से, जो नीचे फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा, ये तो रहेगा ही, साथ में ये भी है हमारा फोर्स, तो टोटल फोर्स आएगा इसमें। इसमें M1 भी है, M2 भी है, क्योंकि ये भी नीचे कनेक्टेड है और ये भी लेंथ कनेक्टेड है। तो इतना जो मास था इसमें प्लस हम कर देंगे किसको, M2G को, ठीक है। तो हमारा जो पूरा मास पूरा आ जाएगा, टी डैश निकल के आएगा, टी डैश, या इसको टी डैश माइनस कहेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, इसमें से टी डैश इस तरह से हम लिख देते हैं इसको पहले, इसको ये हो जाएगा M1 प्लस लैम्डा इंटू 2L, ठीक है, प्लस M2 और इंटू में आ जाएगा A प्लस G, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी इस तरह से। तो इसमें अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास टी डैश इक्वल्स टू आ जाएगा, M1 की वैल्यू हमारे पास है 1.9, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 0.2 और इंटू 2 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास है 1, ठीक है, लैम्डा इंटू 2L है, 2L की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर है, एक्चुअली 2L की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर है, या इसको 1/2 कर दें, 1/2, L इक्वल्स टू क्या है, हाफ मीटर है, तो 1/2, और प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास दे रखा है 2.9 किलोग्राम, और ये मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा A प्लस जी, A की वैल्यू हमारे पास 0.2 इंटू जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ से फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, जो नया टेंशन है टी डैश अपर वायर में, वो आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10, जो कि इक्वल होगा 50 न्यूटन के, ठीक है। सो गाइस हमें यही कैलकुलेट करना था इसमें कि जो नया टेंशन है टी वो कितना होगा, मतलब जो टेंशन है अपर वायर में वो कितना होगा, 50 न्यूटन। तो जो लोअर वायर में टेंशन लग रहा है वो 20 न्यूटन लग रहा है, और अपर वायर में जो टेंशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, 50 न्यूटन। मिडिल पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, मिडिल पॉइंट मतलब पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पे, ठीक है। तो यही हमें कैलकुलेट करना था इसमें। Hello dear students, the question is a rope of length L is pulled by a constant force F. What is the tension in the rope at a distance x from the end where the force is applied? So let us consider a rope AB of length capital L. Let P be the point at which we have to determine the value of tension. So if PB is equal to x, then PA will be equal to L minus x, because the total length is capital L. Let us assume that capital M is the mass of rope and force F is applied at the end B as shown in figure. Then here acceleration on the system will be equal to applied force divided by mass. So A will be equal to F divided by M, and mass per unit length for the string is indicated by lambda, and it is capital M by capital L. Now mass of the part L minus x be small m, and then capital M by L will be equal to small m divided by L minus x. Therefore small m will be equal to capital M by L into L minus x. Now for the part AP, F is equal to capital T. We can say that for part AP of length L minus x, tension in the string capital T is equal to N small m, that is mass of that part, into acceleration. But we know that small m is capital M by L into L minus x, and the value of acceleration is F divided by capital M. Now this M will get cancelled, and therefore tension in the string will be equal to F in bracket L minus x divided by capital L. So here the correct answer for the question will be
Option B, that is F in bracket L minus X divided by L, be the value of tension. Thank you.